Today's topic is traditional methods of performance appraisal. In the previous video, we have seen introduction to performance appraisal and their objectives, essentials of performance appraisal, and problems come under these appraisal methods. So, in this video, we are going to see different types of performance appraisal, or it is known as traditional methods of performance appraisal. Let's start. So in the performance appraisal types, they have two methods, traditional method and modern methods. So first we'll see traditional methods. The first type is graphic rating scale. Okay, graphic rating scale. In this method, evaluator is given printed forms. The evaluator is asked to rate employees on the basis of job related characteristics and knowledge of the job. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, it comes individual performance to an absolute standard. Okay, तो यहाँ पे अप्राइजर्स जो होते हैं उनको एक प्रिंटेड फॉर्म दिए जाते हैं, वन फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का एक फॉर्म, ऐसे आपको रेटर को वो फॉर्म्स दिए जाते हैं। एंड उसमें इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियर एंड ट्रेड बेस्ड क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज टू बी रेटेड बाय द अप्राइजर। ओके, तो जो कोई भी ऑब्जेक्टिव बिहेवियर है या फिर उसकी क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कोई रेटिंग दी जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस रेटिंग मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं, या फिर डिसकंटिन्यूअस रेटिंग मतलब अप्राइजर एक हर एक डायमेंशन को कुछ पॉइंट्स देता है। फॉर एग्जांपल उसका काम करने का तरीका, या फिर द लॉयल्टी or the hard work he do, it has 5 points. Punctuality, it has 2 points. Or uh, other communication skills, it has 4 points. So as per that points, uh, they are going to rate the employee on the basis of job related characteristics. Okay, and then वो जो पॉइंट्स, हर एक को जो पॉइंट्स मिले हैं उसको लास्ट में ऐड करते हैं। So all the points are added up and find out the overall performance. मतलब जिसके points ज़्यादा आएंगे उसका performance अच्छा होगा। Next is ranking method. So ranking method मतलब all the employees are evaluated by the appraiser considering their performance of job as a base, and ranks are given. So order of rating ranges from best to worst. So यहाँ पे क्या होता है, employees are ranked from best to worst on some characteristics. So here rater first find out the employee with highest performance. Okay, यहाँ पे रेटर क्या करता है, पहले जिसका परफॉर्मेंस हाई है उसको फर्स्ट प्लेस कर देता है, और देन एम्प्लॉय विथ लोएस्ट परफॉर्मेंस। ओके, सो लोएस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे आया, ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। ओके, then the rater selects the next highest and next lowest। मतलब इसको फॉर एग्जाम्पल इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सबसे अच्छा है एम्प्लॉय, इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन होगा, सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे वो यहाँ पे उसको प्लेस कर देंगे, और सेकंड लोएस्ट सो यहाँ पे वो प्लेस कर देंगे। ऐसे करते करते यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग हो जाएगी। एंड द ऑर्डर ऑफ रेटिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। सो दिस इज बेस्ट एंड दिस इज वर्स्ट। सो यहाँ पे बेस्ट टू वर्स्ट आपकी रेंज होगी। ओके, next method is paired comparison method. Okay, paired comparison method मतलब employees of one group are compared with another at one time. This method focus on
every trait. Ranking employees by making a chart of all possible pairs of employees for each trait and indicating which is better employees of the pair. So यहाँ पे एक ग्रुप होगा और ग्रुप में हर एक एम्प्लॉय का पेयर करेंगे और उस उनमें कंपैरिजन करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल ए बी सी डी मैंने यहाँ 4 एम्प्लॉयज आर देयर एंड वी आर गोइंग टू हैव कंपैरिजंस. मतलब ए टू ए तो नहीं होगा, सो ए टू बी, बी टू सी, A to C, A to D, okay, then C to D, B to D. So these type of comparisons are there. Each employee is going to compare with others employees. So this method is time consuming because suppose there are 20 employees in the group. Okay, suppose there are 20 employees in the group, so you may have 190 comparisons. Okay, 190 comparisons. 20 employees को अगर आप 1 to 1 compare करोगे तो comparison जो होंगे वो 190 होंगे. So it is very time consuming, and here employees are simply compared to one another rather than specific job criteria. यहाँ पे कोई भी job criteria के हिसाब से comparison नहीं होता, सिर्फ एक employee दूसरे employee से on the basis of traits they are going to compare. So this method is very time consuming. Next is force distribution method. Okay, the rater after assigning the points to the performance to has to distribute his rating in a pattern to conform to normal frequency distribution. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रेटर जो होता है आफ्टर साइनिंग द पॉइंट्स टू द परफॉर्मेंस, उस इसको ना बेल शेप्ड कर्व भी बोला जाता है. बेल शेप्ड कर्व मतलब यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट हिज रेटिंग इन अ पैटर्न. एक पैटर्न में उसको रेट करना है और employees are placed in certain rank categories, not ranked within the categories. He has to rank the certain category. If one department has all the best employees, then supervisor find it difficult to decide whom should be placed in the lower category. Okay, यहाँ पे देखिए कैटेगरी बनाई है उसने, रेटर क्या करता है, कैटेगरीज बनाता है. एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री. Okay, so these are the categories he uh, you know mm, decides, and as per that he is going to place the employees in each कैटेगरी. मतलब 10% एक्सीलेंट है, 20% गुड परफॉर्मेंस है उनका, 40% एम्प्लॉयज़ का एवरेज परफॉर्मेंस है, 20% एम्प्लॉयज़ का बिलो एवरेज है एंड 10% अनसेटिस्फैक्ट्री. So these type of characters or these type of categories are there and employees are going to place on each category. So अगर एक डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ बेस्ट है तो सुपरवाइजर को ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसको कौन से कैटेगरी में रखे और किसको लोअर कैटेगरी में रखे. सो इट इज़ दैट डिफिकल्ट. एंड जब आप किसी एम्प्लॉयज़ को लोअर कैटेगरी में मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री या फिर बिलो एवरेज इस कैटेगरी में प्लेस करते हो तो यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट एम्प्लॉय व्हाई ही हैज़ प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. अगर किसी ने पूछा कि मेरा अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. नेक्स्ट है चेकलिस्ट एंड वेटेड चेकलिस्ट. ओके, सो चेकलिस्ट मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर इज गिवन लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ और वर्ड्स और आस्क टू चेक द स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस. मतलब यहाँ पे उसको एक लिस्ट दी जाती है जहाँ पर स्टेटमेंट्स होते हैं और उस स्टेटमेंट के आंसर्स आपको एज अ इवैल्यूएशन आपको वो करने हैं. ओके, सो वो जो स्टेटमेंट्स है वो
is basis on some particular characteristics, particular trait, qualities of that employee. So there are two types: simple checklist and weighted checklist. Okay, so in the simple checklist, supervisors are asked to check the statements only in two ways, yes or no. यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ दो आंसर लिखने हैं, यस और नो. ओके, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इज हिज कम्युनिकेशन इज गुड, यस और नो. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे जो कि यस मतलब इंडिकेट्स पॉजिटिव और नो मतलब इट इंडिकेट्स निगेटिव, मतलब उसके पास वो क्वालिटी नहीं है. यस मतलब यस, उसके पास वो क्वालिटी है. सो जब आप पूरे स्टेटमेंट्स की लिस्ट की चेकलिस्ट करते हैं तो जो कोई भी यस, जितना भी यस आता है वो आपको काउंट करना है, नो के स्टेटमेंट्स आपको काउंट नहीं करने हैं. और जिसका स्कोर ज़्यादा आएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. एंड वेटेड चेकलिस्ट मतलब यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को एक डिफरेंट वैल्यू दी गई है. फॉर एग्जाम्पल उसका वर्क रिलेटेड उसका नॉलेज कितना है, उसके पास स्किल क्या है. सो स्किल के लिए, स्किल एंड नॉलेज के लिए मैंने 5 मार्क्स दे दिए, पंक्चुअलिटी के लिए मैंने 2 मार्क्स दे दिए, या फिर अटेंडेंस के लिए मैंने 2 मार्क्स. ऐसे ईच स्टेटमेंट हैज़ डिफरेंट वैल्यू. और ये रेटिंग्स आप you are going to multiply by weights of that statements and then coefficient added. So here each statement has some value and it is used to identify and indicate that more some are more important than others. मतलब यहाँ पे आपने जो values दी है तो आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेटमेंट की वैल्यू ज़्यादा है. मतलब आपका स्किल, नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर कम्युनिकेशन स्किल फॉर एग्जाम्पल. या फिर पंक्चुअलिटी से भी इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका स्किल एंड नॉलेज. सो किसी स्टेटमेंट को 5 मार्क्स दिए हैं इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है. सो दिस इज वेटेड चेकलिस्ट. Next is forced choice method. This is also one type of checklist. Okay, so the primary purpose of this method is to correct the tendency of rater to give consistently high and low rating to all the employees and escape the importance responsibility assigned to them. मतलब क्या, large number of statements in a group are prepared. Okay, large number of statements मतलब स्टेटमेंट्स ज़्यादा होते हैं, चेकलिस्ट बड़ी होती है. और ईच ग्रुप कंसिस्ट 4 डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिहेवियर. ओके, मतलब हर एक ग्रुप में 4 स्टेटमेंट्स होंगे, 4 स्टेटमेंट्स. उसमें दो स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स होंगे फेवरेबल टाइप के, दो स्टेटमेंट्स होंगे फेवरेबल टाइप के और दो स्टेटमेंट्स हो गए अनफेवरेबल टाइप्स, unfavorable types. Okay, so each group consists 4 descriptive statements regarding their behavior. Sometimes it has 5 statements. Okay, कभी कभी 5 स्टेटमेंट का भी एक ग्रुप होता है, लेकिन 5 यहाँ पे भी 2 होंगे फेवरेबल, 2 होंगे अनफेवरेबल और एक होगा न्यूट्रल. ओके, न्यूट्रल. सो यहाँ पे जो हर एक स्टेटमेंट का जो वेटेज होता है वो सीक्रेट रखा जाता है. अप्राइजर्स हैज टू सिलेक्ट 2 स्टेटमेंट्स एज पर द एम्प्लॉयज बिहेवियर. मतलब जैसे कि 2 स्टेटमेंट्स फेवरेबल है, 2 स्टेटमेंट्स अनफेवरेबल है, तो एम्प्लॉयर को या फिर उस अप्राइजर को 2 स्टेटमेंट्स एक एम्प्लॉय के लिए आपको सिलेक्ट करना है, जो कि एक फेवरेबल होगा और एक अनफेवरेबल होगा. And it is a mixture of positive and negative
statement. So this method is used to eliminate the biasness, and it is very important that raters must be trained. Okay, so यहाँ पे favorable unfavorable statements like good work organizer show patience with slow learners, dishonest, disloyal, this is unfavorable. Okay, good work organizer, favorable statement. Careful and regular, favorable statements. Avoid work, that is unfavorable statement. So this type of statements are there, and rater क्या करता है, एक एम्प्लॉय के लिए एक फेवरेबल स्टेटमेंट्स रखता है और एक अनफेवरेबल स्टेटमेंट डिसाइड करता है. So this is the method of performance appraisal of forced choice method. This is also one type of checklist. The next method is essay or free form method. In this method, evaluator describes in his own words, okay, own words, that he perceives about employee's performance, and rater tries his level best to describe the facts as correct as possible, and the report is submitted in a essay form. So यहाँ पे rater जो होता है या फिर appraiser writes a short essay describing the performance appraisal. The evaluation of performance is based on strengths and weaknesses. यहाँ पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेसिस रखते हुए मैनेजर्स या फिर अप्राइजर्स जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, और उसमें जॉब डायमेंशंस की कोई भी बेसिस नहीं होती. एक तरह से वो कैसे काम कर रहा है, उसके जो फैक्ट्स है, वो उसके स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, उसके ऊपर मैनेजर्स ऐसे लिखता है. ओके, अब उस रेटिंग का, उस रिपोर्ट की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी उस राइटिंग एबिलिटी पर डिपेंड है. मतलब रेटर किस तरह से वो लिखता है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है या नहीं, उस पर भी वो क्वालिटी डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज ग्रुप अप्राइजल. ग्रुप अप्राइजल मतलब परफॉर्मेंस इज अप्राइज्ड बाय ग्रुप ऑफ अप्राइजर्स. मतलब एक अप्राइजर यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं करता, बहुत सारे अप्राइजर्स होते हैं जिनमें immediate supervisor, other supervisors who have closed contact with that employee, then managers, head of the department, consultant, etc. All these people are going to appraise the performance, and it is mostly used for the purpose of promotion, demotion and retrenchment. जिसको भी प्रमोशन करना है या फिर डिमोशन करना है, इस टाइप के डिसीजंस के लिए ग्रुप अप्राइजल किया जाता है. Next is grading method. Okay, grading method. Under this technique, certain categories like A, B, C, D are selected and careful defined. मतलब जैसे हमें रिजल्ट्स आते हैं हमारे, ए मतलब आउटस्टैंडिंग, बी मतलब वेरी गुड, सी मतलब एवरेज, डी पुअर. सो दिस टाइप ऑफ ग्रेड्स आर गिवन on certain selected features of the employees, मतलब knowledge, judgment, leadership quality, analytical ability, self expression, presentation. ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर, ऐसे फीचर्स के ऊपर वो ग्रेडिंग करते हैं, और उस ग्रेडिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस अप्राइजल की जाती है. कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स. कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, और ये परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाता है ऑब्जर्वेशन, जजमेंट और इंट्यूशन के बेसिस पे, जिसका मतलब एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता कि उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल हो रही है, या फिर जो कोई भी रिपोर्ट आता है वो उसे देखने का भी अलाउड नहीं होता. So employees were not allowed to know the report, but in the May 2008 judgment, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया कि एम्प्लॉई का जो परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है वो उसको दिखाना चाहिए. ही शुड गेट द कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. ओके,
The next is unstructured method of appraisal. So under this method, appraisal has to describe his impression about the employee under the appraisal in an unstructured manner. This simple method but highly subjective in nature. Sometimes appraiser has to list his comments, especially on qualities, abilities, attitude, other personal traits. So यहाँ पे भी आप एक ऐसे टाइप का ही ये मेथड हो सकता है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉई का जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्राइब करना है। उसके लिए कोई भी ऐसा एक स्ट्रक्चर रूल थंब रूल नहीं है, क्योंकि या फिर एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं है यहाँ पे। सिंपली यू आर गोइंग टू हाई यू नो यू आर गोइंग टू हैव द लिस्ट। यहाँ पे आप एक कैरेक्टर्स उसके होते हैं, क्वालिटीज़ क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, इसके बेसिस पे आप अप्राइजल करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड मतलब अंडर दिस मेथड emphasis is laid on the behavior of the worker on the job. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, वो कैसे काम कर रहा है, he whether he does his job or not, whether he becomes upset over the work, resist मतलब वर्कलोड हो गया तो वो अपसेट होता है या फिर रेजिस्ट करता है, किसी काम के लिए मना करता है, या फिर जो कोई भी अदर वर्कर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनको कोऑपरेट करता है या नहीं, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करता है या नहीं, या फिर ऐसे टाइप के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो क्या करता है, वो अप्राइजल नोट डाउन कर लेता है। मतलब ऐसे कोई किस्से होते हैं, ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं, वो रिकॉर्ड करके नोट डाउन कर लेता है, जिसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। सो यहाँ पे दिस नोटबुक contains various categories characteristics about the employees and it requires very close supervision। आपको हर एक एम्प्लॉय पर कड़ी नज़र रखनी है, वो कैसे काम कर रहा है, वो किसी को कोऑपरेट करता है या नहीं, उस वो कोई मिसबिहेव तो नहीं करता, उसका नेचर कैसा है, काम के लिए मना करता है या फिर काम अच्छी तरह से करता है। सो ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्टली या फिर बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको ये काम करना पड़ता है, क्लोज सुपरविजन यहाँ पे रखना पड़ता है। द लास्ट इज फील्ड रिव्यू मेथड। ओके, फील्ड रिव्यू मेथड मतलब क्या, यहाँ पे जो इवैल्यूएटर होता है या फिर जो अप्राइजर होता है वो अ, अ, उस एम्प्लॉय के इमीडिएट सुपरवाइजर को बुलाता है डिपार्टमेंट में। ओके, और एक उसका इंटरव्यू टाइप टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर होता है वो कुछ क्वेश्चंस उसको पूछता है अबाउट दैट सबऑर्डिनेट्स, अबाउट दैट एम्प्लॉयज, क्योंकि उसके इमीडिएट सुपरवाइजर को पता होता है कि वो एम्प्लॉयज कैसे काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, उनके पास क्या एबिलिटीज़ है। सो उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू द सुपरवाइजर्स। और जो इवैल्यूएटर होता है वो हर एक डिटेल के साथ वो नोट डाउन कर लेता है, उसकी एक पर्सनल फाइल प्रिपेयर की जाती है। सो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ अप्राइजल इज यूजफुल इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर एक का परफॉर्मेंस अप्राइज करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो सुपरवाइज़र को ही पूछते हैं कि कैसा करता है वो काम, अच्छा करता है कि नहीं, उसके क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। सो on the basis of that they are going to have the detailing about that employee। so this is called field review method। यहाँ पे आपको रिव्यू लेते हैं आप सुपरवाइजर से हर एक एम्प्लॉय के बारे में। so this is field review method। okay, so these were traditional methods of appraisals and I hope you understood the concepts। so it is a easy topic, if you have any doubt you can ask। okay, thank you।